Okay, so in the last topic we have discussed system bus, and in this topic we are going to discuss what problem will arise if you use common address space, common control signal, and common system bus. Okay, so in the last video we have seen this picture where all three components CPU, memory, and IO were connected to system bus. See, consider a scenario like CPU requested at 1000 location. CPU said I have to perform read operation on 1000 address. Two situations may be arises here. First one is, let's say you have a memory. Memory has several blocks, out of which one address is 1000, where some data is present. Okay, this request is going through system bus, common system bus. Okay, CPU, memory, and IO is connected through this common system bus, and the CPU requested 1000 address. On 1000 address, I have to perform read operation. There is a IO device, okay, which has a port address same as CPU has requested. Here some value is available. Okay, so since the request is going through a common channel, the problem may arise here that neither memory nor IO know that which particular among memory and IO has been requested. Okay, so memory, what memory will do, as soon as it will recognize the address 1000, it will enable the cell for reading purpose. Since IO is connected through the same system bus, so it will also get same request. So IO will also provide the value present as 1000 address. Now the ambiguity is, CPU has request for only one value. Here CPU is getting two value. Okay, and these two are independent. Memory and IO are independent. You never wanted to perform the same operation. Like say you have your CPU says I have to operate at 1000, and in your computer there is a external device like your phone is connected through USB cable, and at this address you have stored some important information in your mobile. Same request goes to memory and IO, so simultaneously this will update both the value in the memory and in the IO. So this is a very big problem. Okay, this is a very big problem. We have to rectify this. Okay, so in order to rectify this problem, we have three types of system buses available. Okay, not system bus, we have three type of processor available. Okay, first one is input output processor, second one is second one is isolated IO, and third one is memory mapped IO. So now let's discuss one by one. First, input output processor. So in this type of processor, what it does, it says, okay, I am going to use same address space, okay, and control signal. I am going to use common address space and control signal. Means keep address space and control signal will be common for memory and IO. Okay, but when it comes to buses, what IO says, its design says, okay, let memory and CPU remains to connected through the system bus. What IO does, IO says ki I have a difference bus. Okay, means ki I will use different bus what is used in the previous system. So designing multiple hardware parts is
costlier, and also it will enhance the size of our system. These days, the latest fashion is everyone wanted smaller device, like a smaller laptop, smaller mobile phone, and any hardware devices. Okay, so two disadvantage is, two cons is, it will enhance the price if we use difference bus for memory and IO. Okay, if you use difference bus for memory and IO, it will enhance the cost as well as the size of that particular device. Okay, so this is not the preferred one. So the second thing, the second available IO processor is isolated IO. In isolated IO, the architecture is same. Okay, means address space is same, bus is same. What differ is control line. It is going to use a different pin IO/M bar to recognize the operations, whether it is requested from IO or from memory. Okay, it is such, let's say this is CPU, it's generated request. When it reaches to control signal, it recognizes, says सी आयो क्या है, आयो किस टाइप का पिन है, एक्टिव हाई पिन, एंड एम किस टाइप का पिन है, एक्टिव लो पिन. यानी कि जब आयो का वैल्यू 1 होगा, ओके, तो रिक्वेस्ट किधर जाएगी, आयो की तरफ, ओके. एंड जब आयो की वैल्यू 0 रहेगी, तब रिक्वेस्ट किधर जाएगी, मेमोरी की तरफ. ओके, सिस्टम बस सेम है. जैसे ही जो रिक्वेस्ट है कंट्रोल सिग्नल को हिट करेगा, ओके, तो जो अटैच्ड, जैसे ही कंट्रोल लाइन को हिट करेगा, तो जो अटैच्ड कंट्रोल सिग्नल है वो यहां पे डिसाइड करेगा कि जो रिक्वेस्ट है वो मेमोरी से किया गया है या फिर आईओ से. ओके, तो अगर 1 है तो किधर जाएगी, आईओ की तरफ. अगर 0 है तो कहां जाएगी, मेमोरी की तरफ. ओके, लाइक कि इफ यू हैव टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन, ओके, तो रीड क्या है, एक्टिव लो ऑपरेशन. यानी कि जब रीड 0 रहेगा तो परफॉर्म होगा ऑपरेशन आईओ रीड, ओके. एंड जब वैल्यू, इस पार्टिकुलर पिन की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब है कि ये मेमोरी की तरफ ले जाएगा, ओके. और रीड जब 0 है तो क्या हो जाएगा, ये मेमोरी रीड, ओके. और ये क्या हो जाएगा, आईओ रीड. इस तरह से क्या होगा कि कंट्रोल लाइंस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल को रिकॉग्नाइज करके जो रिक्वेस्ट जनरेट किया गया है वो मेमोरी से किया गया है या आईओ से, यहां पे सेपरेट कर दिया जाएगा और वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा और वहीं से वैल्यू ला करके सीपीयू में प्रोसेस के लिए देगा. इस तरह से कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आएगी. तो ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि सीपीयू में सिस्टम बस को डिजाइन करना बहुत ज्यादा कॉस्टलियर है और कंट्रोल लाइन को डिजाइन करना सीपीयू के कंपैरिजन में कम कॉस्टली है, बट स्टिल ये मेमोरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉस्टलियर है. ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट भी ज्यादा ना लगे और हम बेहतर तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके विदाउट ज्यादा मनी पे किए हुए. तो हमारे पास एक और मेथड अवेलेबल है, वो है मेमोरी मैप्ड. ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट.
थर्ड वन इज मेमोरी मैप्ड। ओके, मेमोरी मैप में क्या होता है कि जो कंट्रोल लाइन है वो सेम यूज होगा, एड्रेस स्पेस ये भी सेम यूज होगा, बसेज भी सेम यूज होगी। ओनली डिफरेंस हेयर कम्स इज कि सपोज ये मेमोरी है, ओके, इसमें बोला गया कि ऐसा करो कि मेमोरी को 2 पार्ट्स में बांट दो। ओके, मेमोरी को 2 पार्ट्स में बांट दो। एक पार्ट में आईओ ऑपरेशंस, आईओ एड्रेसेस, एंड सेकेंड पार्ट में मेमोरी एड्रेस को अलाउ करो। ओके, मेमोरी को क्या करो, 2 पार्ट में बांट दो। एक पार्ट में आईओ को अलाउ करो, सेकेंड पार्ट में मेमोरी को। मेमोरी डिजाइनिंग चीपर है एज कंपेयर टू कंट्रोल लाइन एंड बसेज डिजाइनिंग। ओके, सो लेट्स से कि 32 बिट्स का हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो मेमोरी में अवेलेबल है उसको मैप करने के लिए 32 बिट्स है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा 2⁻32। ओके, तो 2⁻32 नंबर ऑफ सेल्स हैं। इसमें से बोल रहा है कि कुछ जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स है उसको फिक्स्ड कर दो, किसके लिए, आईओ के लिए, और कुछ सेल्स को फिक्स कर दो मेमोरी के लिए। ओके, लाइक सपोज इसको हम फिलहाल 4 बिट मान लेते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ सेल अवेलेबल कितना हो जाएगा 2⁻4। 4 बिट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ओके, इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, एंड इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB। ओके, तो इस चारों पिन्स में से, इस चारों बिट्स में से ओके, कुछ बिट्स को हम रिजर्व करके एलोकेट कर सकते हैं आईओ के लिए, एंड सेकेंड की कुछ बिट्स रिजर्व करके हम उसको एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी के लिए। जैसे 4 बिट्स हैं 0 0 0 0 लाइक दैट। बोला गया कि जब 2 MSB बिट्स, ओके, 2 MSB बिट्स जब 0 0 होंगी तब वो एड्रेस कहां जाएगा, आईओ की तरफ, एंड रेस्ट ऑफ द कंडीशन में वो कहां जाएगा, मेमोरी की तरफ। ओके, तो यहां से सेल्स इंडिकेशन इस तरह से हो सकता है 0 0 0 1। ओके, नेक्स्ट इस तरह से कुछ हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स का एड्रेस इस तरह से हो सकता है 4 बिट में। बोला है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट का 2 बिट्स हैं उसमें से दोनों बिट्स अगर 0 0 हो, ओके, तो इस पार्टिकुलर एड्रेस को हम कहा ले आकर के रखेंगे, यानी कि ये कहां से मेमोरी फेच करेगा, आईओ डिवाइस से, एंड रेस्ट ऑफ द एड्रेसेस, बाकी जितने एड्रेस बन सकते हैं वो सब कहां जाएगा, मेमोरी की तरफ। ओके, हमारे पास फिक्स्ड है आईओ में कौन जाएगा एंड मेमोरी में कौन जाएगा। यहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एक्चुअल वो प्रॉब्लम नहीं है बट कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं है मेमोरी का। सपोज कि हमारे पास 100 MB का एक मेमोरी है, उसमें हमने क्या किया कि एड्रेसेस, सो मेमोरी स्पेस है, ओके, या पार्टिकुलर सेल क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड कर दिए आईओ के लिए एंड मेमोरी के लिए। आपने मेमोरी के लिए सपोज करो कि 80 MB एलोकेट कर दिया एंड आईओ के लिए 20 MB एलोकेट कर दिया। मान लो कि आप कंप्यूटर में कभी भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट नहीं करते हो, कभी भी आप आईओ लगाते ही नहीं हो कंप्यूटर में, ओके, एंड आप आईओ से कोई काम नहीं कर रहे हो, 20 MB जो मेमोरी है वो कंप्लीटली वेस्ट हो गया। एंड सेकेंड थिंग कि सपोज करो कि आपके पास नंबर ऑफ एड्रेसेस 80 MB से ज्यादा एक्सीड कर रही है, तो आपके पास क्या है कि 20 MB ऑफ मेमोरी अभी भी खाली है बट आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको किसके लिए एसोसिएट कर दिया है, किसके लिए ऑलरेडी रिजर्व कर दिया है, आईओ के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा बस यही प्रॉब्लम है, बाकी ये चीपर है एंड
बाकी चीपर भी है, डिजाइनिंग कन्वीनियंस भी है, ओके, एंड एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं है हार्डवेयर डिजाइनिंग का, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इस पे एक प्रॉब्लम, ओके। थैंक यू।